I'm here joined by Dr. Dheeraj. First of all, welcome to the Healthcare Summit 2025. Let's start with how would you like to describe the vibe of this gathering? Yeah, I feel I feel it very good. Actually, this summit is very important for our people, our community. I belong to allopathy department, allopathy. Oh, Yeah, I myself, Dr. Dheeraj, I did my MD and DM in gastroenterology, then MRCP from London in gastroenterology and hepatology. okay. Actually, I am from the allopathy, but I deeply believe in Ayurveda, always, because we feel at each and every time when patient came to us, and we feel we fail somewhere where allopath have no treatment for multiple disorder in people, and we say go for surgery, go for transplant, or indefinite therapy for lifelong. We have no cure. We have treatment only. Treatment for suppressing the disease. There are multiple diseases, allopathy, like autoimmune disorder, diabetes, hypertension, or advanced cirrhosis, or CKD. So we always feel there should be a combination of Ayurveda and allopathy to cure and combat the multiple disease, and to eliminate the disease from the society, to make people more happier, more disease free, and free from all ailment. And it's always occurred by the mixture of medicine, lifestyle, the proper sleep, proper way of thinking, good attitude. And if we discover Ayurveda, Ayurveda actually teach us for how to make a better life by change the lifestyle, how to combat the disease by changing the lifestyle, or changing the way of uh, drinking, way of taking food, how much, when, and how. So it's very important. And this summit actually, I think I always say we should we should announce a summit for allopathic, Ayurvedic, Unani, homeopathic, every doctors at the same stage. By the BRICS only, I just request BRICS for that particular things also, All because right, it's a need of our. I have to tell you this, धीरज. इस सीट पे आप पहले वो इंसान है जो एलोपैथी से आ रहे हैं. इनफैक्ट अभी तक मैंने Thank you. जितने भी लोगों से बात करी है, everyone had the same impression that we have a lot of friends in allopathy and they are not going to like us for saying this. But you yourself coming from allopathy and supporting Ayurveda is a big thing. लेकिन अब हम अगर ब्रिक्स और आयुष की कोलैबोरेशन की अगर बात करते हैं, आप इसे किस तरह से देखते हैं? तो ब्रिक्स एंड आयुर्वेद के कोलैबोरेशन को मैं ऐसे देखता हूँ कि इंडिया, अगर मैं बात करूँ अपने कंट्री की, तो मुझे कहने में कहीं से भी कोई डाउट नहीं होगा कि एक्चुअली वी आर द पायनियर इन आयुर्वेदा एनी टाइम. हम लोग का जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर ऑफ ट्रीटमेंट है, वो स्टार्ट जो हुआ था उसी से हुआ था. और बहुत सारे मरीज जो पहले थे, जिनके बारे में जो बीमारी का पता नहीं था, उसका इलाज हो जाता था दिस आयुर्वेदा से. डायग्नोसिस नहीं होती थी, पेशेंट ठीक हो जाता था. तो लॉन्गेटिविटी मैं बोलता हूँ हमेशा कि बढ़ी नहीं है, घट रही है. जबकि हमारे पास एलोपैथ है, हमारे पास रोबोटिक सर्जरी, एवरीथिंग है, बट लॉन्गेटिविटी कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज हो रही है, जो पहले ज़्यादा थी. जो पहले सिर्फ हमारे पास आयुर्वेद था, अगर मैं बात करूँ तो हम लोग का ये अपना साइंस है, अपना है. तो और बाकी कंट्री की मैं बात करूँ तो जहाँ जैसे चाइना, रसिया, Brazil, they have their own traditional medicine, and they are so powerful, and they are good impact on the health. So अगर हम उनके मेडिसिन को, अपने मेडिसिन को, आयुर्वेदा को, अगर दोनों को साथ में रख के दोनों को प्रोस्पेक्ट को समझें, दोनों को कंबाइंड वे में उसका यूज करें, हम तो कहेंगे कि एलोपैथ के साथ मिला के यूज करें, तो वी कैन क्रिएट ए वंडर इन द लाइफ ऑफ ह्यूमन बीइंग. बट सिंस आप एलोपैथी से आ रहे हैं, आपके नाम के आगे डॉक्टर है, now people who are going to study Ayurveda will also have that opportunity to have doctor in front of their name. आप इसे किस तरह से देखते हैं? Always. If you are studying any पैथी, आयुर्वेदा, होम्योपैथ, एलोपैथ, यूनानी, डॉक्टर उनके नाम के आगे लगना चाहिए, बिकॉज ये उनका हक है, उनका ये राइट है, और ये उनको कॉन्फिडेंस भी देता है, उनके कॉन्फिडेंस को बूस्ट करता है. और मैं यहाँ से इस स्टेज से बोलना भी चाहूँगा, अगर आपने आयुर्वेदा की पढ़ाई की है तो आप बोल्डली आयुर्वेदा की प्रैक्टिस करो, और बिल्कुल साथ में कंधे मिला के प्रैक्टिस करो. नेवर स्विच टू एलोपैथ टू आयुर्वेद, आयुर्वेद टू एलोपैथ. दिस एक्चुअली क्रिएट ए प्रॉब्लम इन सोसाइटी. तो उनके पास पोटेंशियल है, और वो चाहें तो एक वंडर क्रिएट कर सकते हैं अपने साइंस के थ्रू. और जो लोग कहते हैं भी, जीना सिको का मैं वीडियो देख रहा था सर का, तो देखा कि 4 दिन में उन्होंने कैंसर को ट्रीट किया. इट्स वेरी गुड. एंड एक्चुअली ये हो रहा है, इंडिया में ऐसी चीज़ें हो रही हैं. और लोग कहते हैं आयुर्वेद स्लो है, होम्योपैथ स्लो है. अगर अच्छे से इसको प्रैक्टिस किया जाए, साइंस को समझा जाए, तो आयुर्वेद इज सो फास्ट एज एलोपैथ एनी टाइम.
आयुर्वेदा के बारे में ऐसी कौन सी चीज़ है जो आपने आज इस समिट में आकर सीखी, जिसके बारे में आपको पहले नहीं पता था? मुझे बहुत ज़्यादा आइडिया सीरियसली नहीं है, बिकॉज मैं एलोपैथ से बिलोंग करता हूँ, और बस मेरे अंदर एक हमेशा से रहा है कि मैं नई नई चीज़ों को सीखने के लिए हमेशा वो रहता हूँ। तो मेरे आने का यहाँ टारगेट यही था कि मेरे बहुत सारे ऐसे पेशेंट हैं जिनको IBS है, इरिटेबल बोवेल सिंड्रोम, हर एक तीसरा इंडियन मिल जाएगा जिनको गैस की समस्या है, जिनके पेट में प्रॉब्लम है, वो ठीक नहीं हो पा रहे हैं, दे टेकन मल्टीपल कंसल्टेंसी। तो पहले तो मैं उसको जानने आया था कि आयुर्वेद में क्या ओपिनियन है, उसमें क्या हो सकता है। फिर मैंने बताया आपको लीवर सिरोसिस होने पे लीवर ट्रांसप्लांट इज ओनली वे टू क्योर फ्रॉम द डिजीज, तो मैं ये भी जानने आया। तो मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखी, जैसे वहाँ पे अभी हमारे बैद्यनाथ के डॉक्टर बैठे थे, तो उनसे मैंने डिस्कस किया, तो उन्होंने बताया कि हम लोग किस तरह से ट्रीटमेंट करते हैं। हम लोग पहले बॉडी के नेचर को समझते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हम लोग ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। आचार्य मनीष सर से मिला, उन्होंने बताया कि हम लोग पंचकर्म जो कराते हैं उसमें बेसिकली हम लोग लाइफ स्टाइल को ठीक करते हैं, खाना सूर्यास्त के बाद ना खाएं, ये हम लोग सब पढ़ते हैं, हम लोग सब समझते हैं, मैं अपने पेशेंट को भी कहता हूँ। बट प्रॉब्लम क्या है जो मुझे समझ में आता है मेरे प्रैक्टिस में, मैं डेली मोर देन 100 पेशेंट देखता हूँ। मैं पटना मेडिकल कॉलेज में हेड ऑफ डिपार्टमेंट में हूँ, तो मुझे समझ में आता है जब मैं लोगों को बताता हूँ कि लाइफ स्टाइल चेंज करो, तो उनके चेहरे पे एक अजीब सा वो आ जाता है, लाइफ स्टाइल नहीं सर दवाई लिख दो, ओबेसिटी कम करो, दौड़ना है नहीं सर दौड़ाओ नहीं, मुझे दवाई दे दो, मुझे मोटापा कम करा दो। तो दवाइयों के प्रति जो प्यार है और लाइफ स्टाइल को चेंज करने के लिए जो मेहनत नहीं करना चाहते, लॉन्ग टर्म चीज नहीं चाहिए, तो जो लेजीनेस है बॉडी में वो एक्चुअली बीमारी क्रिएट कर रही है। अगर आप उसको समझो कि अगर मैं अपने बॉडी को बिल्कुल वैसे कर दूं जैसे उसको होना चाहिए और उस मोशन में रखूं, तो मेरे हिसाब से वो बेस्ट होगा। दवाइयों की जरूरत मैं आपको इसी पॉडकास्ट के थ्रू भी बताना चाहूँगा, मैं एक बुक लिख रहा हूँ नॉन एज साइंस ऑफ स्ट्रेंथ, और उस बुक लिखने का पीछे मेरा जो रीजन था कि मैं उसमें हर एक चीज़ के बारे में बता रहा हूँ। स्टार्ट विद द फिजियोलॉजी, सेरोटोनिन कैसे काम करता है आपके बॉडी में, जो इंजाइम है उसका डिसरेगुलेशन से होता गया, फिर उसको हम लोग आयुर्वेद से कैसे ठीक करें। तो स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम इनसाइड एक्चुअली। मैं हमेशा अपने पेशेंट को भी एग्जांपल देता हूँ, स्टीफन हॉकिंस का, दे सफरिंग फ्रॉम मोटर न्यूरॉन डिजीज, पूरा शरीर पैरालाइज था और उन्होंने इतना रिसर्च किया। अगर हॉकिंस की बात करें तो उन्होंने फिजिक्स में बहुत सारा रिसर्च किया, और वो 20 ईयर वो पैरालाइज थे, उनके शरीर में कोई जान नहीं था, बट मेंटल स्ट्रेंथ उन्होंने इतना, तो एक्चुअली स्ट्रेंथ कम्स फ्रॉम योर ब्रेन, योर मेंटल स्ट्रेंथ। तो ये चीज़ें कहीं ना कहीं से आज के सोसाइटी में बहुत लैक करते जा रहा है, और लोग अपने आप को बीमार समझते इसलिए बीमार होते चले जा रहे हैं। तो जो साइंस ऑफ मैनिफेस्टेशन है या फिर बीमारी से लड़ने की जो ताकत है, वो खुद अगर इंसान ये सोचना शुरू कर दे मुझे कोई बीमारी नहीं है, बस इतना सारा, तो उसकी बीमारी 50% अपने आप कम हो जाती है, चाहे वो कैंसर तक पहुंचने के लिए भी प्रोसेस वापस आयुर्वेदा में योगा और मेडिटेशन की तरफ जाएगा। बिल्कुल। एक्चुअली मेडिटेशन इज मदर ऑफ एवरीथिंग। तो मेडिटेशन करने का जो तरीका है वो आयुर्वेद बताता है, और मुझे लगता है कि हर एक इंसान को मेडिटेशन जानना चाहिए, समझना चाहिए, और मेडिटेशन का यूज बीमारी को कम करने के लिए कैसे होता है उसको भी जानना चाहिए। और ये चीज़ें, आयुर्वेद इज नॉट ओनली फॉर मेडिसिन, इट्स फॉर योर लाइफ स्टाइल। और हम लोग एलोपैथ में भी लाइफ स्टाइल के बारे में बहुत सारी बातें करते हैं, समझाते हैं, डाइट चार्ट देते हैं, डाइट प्लान बताते हैं, बट कहीं ना कहीं से ये लैकिंग होती है। पेशेंट डॉक्टर के सामने तो बहुत इंटरेस्टिंग होता है, लेकिन आयुर्वेद में मैंने जो जीना सीखो से आज सीखा कि वो अपने सामने रख के वो काम कराते हैं। ये फैसिलिटी हम लोग नहीं देते हैं। जब आप एलोपैथ हॉस्पिटल की बात करो, चाहे वो कितने बड़े बड़े हॉस्पिटल, वहाँ पे मेडिसिन चलते हैं, पेशेंट एडमिट हो गया, दवाइयाँ चल रही हैं, बट लाइफ स्टाइल को लेके बहुत ज़्यादा उनको, आयुर्वेद हॉस्पिटल में आप जाते हो तो आप देखते हो कि इनका सुबह से लेकर रात का रूटीन ये लोग सेट करते हैं, क्या खाना, क्या पीना, कैसे करना, तो इन सब चीज़ों पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो जैसे हॉस्पिटल्स में स्पेशली अगर हम एलोपैथी की बात करते हैं, बड़े से बड़े हॉस्पिटल आपको मिल जाएंगे, 5 स्टार सर्विसेज वाले आपको हॉस्पिटल्स मिल जाएंगे। क्या आयुर्वेदा में भी इस तरह की सर्विसेज मिलती है? आयुर्वेदा में ये 5 स्टार फैसिलिटी वाले हॉस्पिटल्स नहीं है, ऑर्गेनाइज्ड नहीं है, बट मुझे लगता है ये होना चाहिए। आयुर्वेदा को भी उसी तरह से डेवलप होना चाहिए जैसे एलोपैथ डेवलप हुआ है, और ये बहुत ही चमत्कारी होगा लोगों के लिए। लोग के पास भी फैसिलिटी रहेगा कि अगर मुझे आप 2-4 दिन आप किसी हॉस्पिटल में रुके, आपको समझ में आ रहा है मुझे फ़ायदा नहीं मिल रहा है, तो सेम फैसिलिटी के साथ एक आयुर्वेदिक हॉस्पिटल भी होना चाहिए जो इलाज आयुर्वेदा के थ्रू करे, बट फैसिलिटी बिल्कुल 5 स्टार जैसी हो। इसकी रिक्वायरमेंट है, और मैं चाहूँगा कि ये कोई ना कोई इसको आगे आके करे, और आई विल सपोर्ट इन दैट पर्टिकुलर थिंग। और आज के इवेंट की अगर हम बात करें तो ब्रिक्स इनटू आयुष, ये जो कोलैबोरेशन है, ये और किस तरह से बेहतर हो सकता है? सबसे पहले तो मैं बोलूँगा ब्रिक्स इनटू आयुष इनटू एलोपैथी इनटू होम्योपैथिक सबको मिला के कोलैबोरेशन होना चाहिए, तब वो बेहतर होगा। तो और बेहतर होगा, क्योंकि यहाँ पे जितने डॉक्टर्स आए थे उनका इंसाइट हमने सुना। आयुर्वेद डॉक्टर्स भी एलोपैथ के इंसाइट को सुनना चाहते हैं। मेरे आने का मकसद यही था कि मैं अपने साइंस के अलावा दूसरे साइंस को जान सकूं, क्योंकि बॉडी एक है, और आयुर्वेदिक की बात करें या होम्योपैथिक की जो मेडिकल साइंस की पढ़ाई होती है वो फर्स्ट
2 ईयर में सेम होती है। आपको ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाया जाता है सेम टू सेम। आप लिटरेचर उठा लो, आपको आयुर्वेद का भी वही मिलेगा और MBBS का भी वही मिलेगा। तो आपका वही ह्यूमन फिजियोलॉजी, क्योंकि इफ़ यू डोंट नो अबाउट ह्यूमन फिजियोलॉजी यू कांट ट्रीट द बॉडी। तो सारा साइंस तो एक ही है, हमको और आपको, आप आयुर्वेद से हम एलोपैथ से ट्रीट करना किसी को है, बॉडी को ही ट्रीट करना है। तो साइंस एक है, बस उसका तरीका अलग अलग है। तो जब साइंस एक ही है, तरीका अलग है और मकसद भी एक ही है कि हमको उसको ठीक करना है, तो मिलके बातें होनी चाहिए। हमारे परम पूजनीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में ये चीज़ें हो रही हैं। उन्होंने कोलैबोरेशन की बात कही, मैं उस पर सहमत भी रहता हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स अगेंस्ट होते हैं कि नहीं वो आयुर्वेद जो है उसको इतना नहीं मिलना चाहिए। मेरा कहना यही है कि अल्टीमेटली जो सोशल वेलबींग के लिए अच्छा वो होना चाहिए, और ये अच्छा तभी होगा जब हम लोग मिलके काम करें, एक प्लेटफॉर्म पे आएँ। ये ब्रिक्स जो है एलोपैथ को भी लाएँ और हम लोग मिलके काम करें, और मल्टीपल कंट्रीज जो है जो ब्रिक्स में नहीं भी है उनका भी एक एसोसिएशन बने फॉर सोशल वेलफेयर फॉर हेल्थ। तो ये चीज़ें और अच्छे से हम लोग आगे ले जा सकते हैं। All right, Dr. Dheeraj, thank you so much for coming here. Thank you so much for this conversation. और मैं आपको इस प्लेटफॉर्म से बताना चाहूँगा कि मैंने एक डॉक्टर धीरज वेलफेयर फाउंडेशन करके एक मैंने अपना ऑर्गेनाइजेशन शुरू किया है, जो एक ट्रस्ट है। और उस ट्रस्ट के थ्रू हम लोग वैसे गांव में जाते हैं जहाँ से लोग जिनके पास इतने पैसे नहीं है कि वो शहर आ सके इलाज के लिए, तो हम लोग उस गांव को पहले रिकॉग्नाइज करते हैं, फिर वहाँ जाके विद द फुल डॉक्टर्स फ्रॉम ईच एंड एवरी डिपार्टमेंट, DM नेफ्रो, DM कार्डियो, द बेस्ट ऑफ द डॉक्टर जो कॉलेज में प्रोफेसर है उनको हम ले जाते हैं। और वो वहाँ तक ख़त्म नहीं होता है, वहाँ पे हम लोग पेशेंट का इलाज करते हैं, उनका सारा टेस्ट फ्री, सारी दवाइयाँ फ्री में देते हैं, और उसके बाद उनका जो भी इलाज होता है लाइफ लॉन्ग हम लोग उसको फ्री रखते हैं विद द हेल्प ऑफ द डॉक्टर्स जिनसे वो जुड़े हुए हैं। Oh wow, तो wonderful. हम लोग अभी कुल मिला के मोर देन 50,000 पेशेंट को ट्रीट कर चुके हैं, एंड मोर देन 50 कैंप्स हम लोगों ने अभी तक कर रखा है। इस बार हम लोगों ने कैटरैक्ट की फ्री सर्जरी की है, मोर देन 100 पेशेंट इनरोल किया है जिनको फ्री में, जिनको ये पता ही नहीं था कि मेरी आँख की रोशनी वापस आ सकती है। ऐसे लोग की मैं बात कर रहा हूँ जिनको ये नहीं पता है कि कैटरैक्ट होता क्या है और किस डॉक्टर से मिलना है। आँख के डॉक्टर के पास जाएंगे तो पैसे लग जाएंगे, तो उस डर से नहीं जा पा रहे हैं। तो वैसे लोग को हम लोग उठा रहे हैं, उनके आना जाना, उनका ऑपरेशन, एवरीथिंग इज फ्री। तो उस लेवल पे हम लोग ग्रास रूट पे काम कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ आने का मेरा मकसद ये था कि हम इनसे कुछ सीखें और इसको फिर जाके अपनी सोसाइटी में हम इम्प्लीमेंट करें, इन द फॉर्म ऑफ वेलफेयर, इन द फॉर्म ऑफ सर्विस टू द ह्यूमन मैनकाइंड, एंड इन द फॉर्म ऑफ साइंस, जो मेरा साइंस इनरिच हो ताकि मैं उसको आगे बढ़ा सकूँ। That is wonderful. Thank you so much, थैंक यू Dr. मैम।